Hanji, good morning everyone. My name is Deepak Gupta and I welcome you all on the classes of Career Quest Patiala. ਸੋ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋਵੋਗੇ ਤੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਦੀ। ਸੋ ਪਿਛਲੀ ਦੋ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਾਇਲੌਗਸ ਦਾ ਚੈਪਟਰ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਵੀ ਜੋ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਰਹੇਗੀ ਸਾਇਲੌਗਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਸਾਇਲੌਗਸ ਦੀ, ਉਹ ਪਲੀਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਦੇਖੋ, ਫਿਰ ਹੀ ਅੱਜ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਕਲੀਅਰ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੀ ਦੋ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਨਸੈਪਟਸ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹੀ ਕਨਸੈਪਟਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਕਨਸੈਪਟਸ ਵੀ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਜਦੋਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਰੀਜ਼ਨਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜੋ ਹੈ ਆਵਾਜ਼ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਸਟ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਦੇ ਆ ਜੋ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਕਨਸੈਪਟ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ, ਸੋ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈ, नो हाउस इज अ स्कूल। कोई भी हाउस मेरा की है स्कूल नहीं है, ठीक है। फिर उस तो बाद ऑल कॉलेजेस आर स्कूल, सारे दे सारे कॉलेज की हैं स्कूल हैं। क्लियर? ऑल स्कूल्स आर टीचर्स, सारे दे सारे स्कूल्स की हैं टीचर। सो डायग्राम सब दी यही बनी होगी, ठीक है। डायग्राम तो पिछली वीडियो ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਹੈ ਹੀ ਸੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਨਕਲੂਜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਕਨਕਲੂਜਨ 1 ਐਂਡ ਕਨਕਲੂਜਨ 2। ਸੋ ਹੁਣ ਕਨਕਲੂਜਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, नो हाउस इज अ टीचर, कोई भी हाउस टीचर नहीं है। सो ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਕੇਸ ਹੈ ਉਹ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਟੀਚਰ ਦਾ ਸਰਕਲ ਬੜਾ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਹਾਊਸ ਦਾ ਟੀਚਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਏ, ਠੀਕ ਹੈ। क्वेश्चन ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਊਸ ਕੀ ਹੈ, ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਬਟ ਟੀਚਰ ਨਾਲ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਗਿਵਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਕਨਕਲੂਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਉਹ ਡੈਫੀਨੇਟ ਹੈ, ਬਟ ਉੱਥੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਗਲਤ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਕਨਕਲੂਜਨ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਟ ਹੁਣ ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਏ ਇਜ਼ ਅ ਪੋਸੀबिलिटी, ठीक है। बट हुण अगर इत्थे आ जाए इज अ पॉसिबिलिटी, फिर ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਊਸ ਤੇ ਟੀਚਰ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਅਨਡਿਫਾਈਨ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਅਨਡਿਫਾਈਨ ਹੋਵੇ ਪਲੱਸ ਪੋਸੀबिलिटी ਆ ਜਾਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, ਸਹੀ ਕਰੋਗੇ ਕਨਕਲੂਜਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ, ਸੈਕਿੰਡ ਕਨਕਲੂਜਨ ਕੀ ਹੈ, नो कॉलेज इज अ हाउस, ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਲਜ ਮੇਰਾ ਹਾਊਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਸਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰਾ ਹਾਊਸ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਗਰ ਹਾਊਸ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਲਜ ਵੀ ਹਾਊਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਾਲਜ ਕੀ ਹੈ, ਸਕੂਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਸਹੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਨਕਲੂਜਨ ਸਹੀ ਹੈ। ਬਟ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੇਂਜ ਹੋਰ ਕਰਦਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਅਗਰ ਮੈंने ऐड करता इज अ पॉसिबिलिटी, ठीक है। बट ਹੁਣ ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਐਡ ਕਰਨਾ ਇਜ਼ ਅ ਪੋਸੀबिलिटी, ਫਿਰ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਇਜ਼ ਅ ਪੋਸੀबिलिटी ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਕਿੰਡ ਕਨਕਲੂਜਨ ਹੈ ਉਹ ਸਹੀ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗਲਤ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਲਦੀ ਦੱਸੋ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੈਕਿੰਡ ਕਨਕਲੂਜਨ ਇਜ਼ ਅ ਪੋਸੀबिलिटी ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗਲਤ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਨਵਾਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੀ ਹੈ, नो कॉलेज इज अ हाउस, उस केस ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਲਜ ਹਾਊਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਟ ਹੁਣ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਹ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਪੜਾ ਕਿ ਇਜ਼ ਅ ਪੋਸੀबिलिटी, ਕੋਈ ਵੀ ਹਾਊਸ ਮੇਰਾ ਕਾਲਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਜ਼ ਅ ਪੋਸੀबिलिटी ਯਾਨੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਟ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, ਸੈਕਿੰਡ ਕਨਕਲੂਜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਡੈਫੀਨੇਟ ਕੇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੋਸੀबिलिटी ਆ ਜਾਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਡੈਫੀਨੇਟ ਕੇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੋਸੀबिलिटी ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਨਕਲੂਜਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, ਗਲਤ ਕਰੋਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਡੈਫੀਨੇਟ ਹੈ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰੋਗੇ। ਆਈ ਹੋਪ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ।
ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਦੋ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਮੈਂ। ਹੁਣ ਡਾਇਗਰਾਮ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਈਏ ਕਿ ਸਾਰੀ ਸੇਮ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। क्वेश्चन आप कुछ अलग तो बना देने, ठीक है। ऑल ए इज बी, ठीक है। कंक्लूजन वन, स्टेटमेंट वन, स्टेटमेंट टू, सम बी आर सी, ठीक है। डायग्राम बनाओ जल्दी, मैंने कंक्लूजन लिख रहे हैं। सो हम कंक्लूजन वन मेरे कुल की है सम सी आर पी। कंक्लूजन सेकंड की है सम ए सॉरी सम बी आर सी, ठीक है। बिल्कुल नवा पॉइंट है ये, सारे जाने ध्यान अपना बोर्ड ते ही रखना है। सो हुण डायग्राम सबने बना ली होएगी बहुत आसानी दे नाल। डायग्राम की है देखो, ऑल ए इज बी, सारे दा सारा ए की है बी है ते कुछ भी मेरा की है सी, यही डायग्राम बनी है, ठीक है। सो हुण आपां गल करदे हां कंक्लूजन दी। कंक्लूजन की है सम सी आर बी, तुसीं की कहोगे हाँ मेरा कुछ हिस्सा सी दा की है बी, तुसीं की कर दोगे सही कर दोगे, ठीक है। सो हुण जो नवें पॉइंट दी मैं गल कर रहा बेसिकली वो मैं किस रिस्पैक्ट ते गल कर रहा हाँ, कंक्लूजन सैकेंड ते, ठीक है। हुण इत्थे की है सम बी आर सी, कुछ मेरा बी दा हिस्सा की है सी, तुसीं डायग्राम देखोगे फटाफट की कर दोगे सही कर दोगे। बट हुण इत्थे चेंज की है, स्टेटमेंट दे अंदर भी सेकंड की है सम बी आर सी, कंक्लूजन दे अंदर भी की है सम बी आर सी। सो बिल्कुल सेम स्टेटमेंट ही आपां कंक्लूजन दे विच लिखती, डायग्राम च देख रहे आपां हाँ वो चीज़ पॉसीबल है, यानी कि हो रही है, डेफिनेट है, ठीक है। बट की करना है तुसीं जदों भी सेंटेंस एज इट इज़ रिपीट हो जाए, स्टेटमेंट एज इट इज़ रिपीट होके कंक्लूजन दे विच आ जाए तो तुसीं की करोगे उस कंक्लूजन नूं गलत करोगे, ठीक है। सबनूं समझ आ गया की क्या है मैं कि अगर सेम स्टेटमेंट कंक्लूजन दे विच लिखी आ जाए, हुण इत्थे की है सम बी आर सी, कंक्लूजन भी की है सम बी आर सी, सेम सेम हो गया बिल्कुल, तो उस केस दे विच तुहाडा की है गलत होएगा कंक्लूजन, ठीक है। सो यही नवा पॉइंट सीगा, स्क्रीनशॉट खिंच लो अगर किसी ने खिंचना है तो। हाँ जी हो गया, चलो चलो हुण आपां कुछ नवी चीज़ डिस्कस करते हैं। सो हुण नवी चीज़ की है इत्थे देखो, सम कंफ्यूजिंग वर्ड्स हैं, ठीक है। सम कंफ्यूजिंग वर्ड की है ये वाला बेसिकली जो है एक पूरे का पूरा कॉन्सेप्ट है। ओनली ए इज बी, ओनली ए इज बी का मतलब की है ऑल बी आर ए, ठीक है। यानी कि सारे का सारा मेरा जो की बी है वो की है ए, ये क्लीयर हो गया, ठीक है। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰੀਡ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਓਨਲੀ ਏ ਇਜ਼ ਬੀ ਨੂੰ ऑल बी आर ए, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਸਭ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਬਟ ਹੁਣ ऑल बी आर ए ਤੇ ਓਨਲੀ ਏ ਇਜ਼ ਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ, बी ਦਾ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। बी ਦਾ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਨਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਐਸੀ ਕੋਈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੇਸ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਓਨਲੀ ਵਾਲਾ ਆ ਜੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਸ਼ੋ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸਿਰਫ ਓਨਲੀ ਏ ਇਜ਼ ਬੀ, ਸਿਰਫ ਬੀ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਏ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਸਿਰਫ ਬੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। यानी कि होर कोई बी का बाहर रिलेशन हो ही नहीं सकता। तो जो भी आ जाए केस ओनली ए इज बी, तो सैकेंड वेरीएबल नूं तुसीं अंदर पा दो तो उसका कोई भी रिलेशन थोड़ा नहीं होएगा, ठीक है। इन्नी की चीज़ समझ आ गई, अगे क्वेश्चन करांगे उस दे नाल होर ज़्यादा क्लैरिटी होएगी। तो हुण कुछ क वर्ड्स हैं, वर्ड्स किहड़े, फ्यू, अ फ्यू, 1 to 99%,
not every, can be। ਸੋ ਹੁਣ can be ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, possibility, ठीक है। many, most, most of, mostly, much, almost, almost all, generally, occasionally, ਇਹ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗਾ, ਸਮ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਮ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਆ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੇਸ ਕਿਹੜਾ ਚਲਾਓਗੇ, ਸਮ ਵਾਲਾ ਚਲਾਓਗੇ। ਐਵੇਂ ਹੀ ਅਗਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਈਚ, ਐਵਰੀ, ਐਨੀ, 100%, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਿਸ ਦੇ ਸਿਨੋਨਿਮ ਹੈ, all ਦੇ ਸਿਨੋਨਿਮ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। all ਦੇ ਸਿਨੋਨਿਮ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੋ ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨਨ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨੈਵਰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਨੋ ਵਨ। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਦੇ ਤਿੰਨੋਂ ਕਿਸ ਦੇ ਸਿਨੋਨਿਮ ਹੈ, ਨੋ ਦੇ ਸਿਨੋਨਿਮ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ। ਕੈਨ ਨੈਵਰ ਵੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਮ ਨॉट, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਮ ਨॉट। ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਸਭ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਨੋਟਬੁੱਕ ਤੇ ਆਪਣੀ ਲਿਖ ਲਓ ਜਲਦੀ। हाँ जी, हो गया। चलो जिस किसी का रह गया प्लीज वीडियो ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਫਿਰ ਲਿਖ ਲਓ। ਚਲੋ ਸੋ ਹੁਣ ਕਨਸੈਪਟ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚੇਂਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਣ ਕਨਸੈਪਟ ਯੂਜ਼ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਯੂਜ਼ ਹੋਏਗਾ, ਓਨਲੀ ਅ ਫਿਊ ਵਾਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਓਨਲੀ ਅ ਫਿਊ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਦੋ ਕੁਐਸਚਨ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਬੋਰਡ ਤੇ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਟਰਾਈ ਕਰੋਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈ, ਸਟੇਟਮੈਂਟ, नो फ्राइडे इज संडे। मेरा कोई भी फ्राइडे ही है, संडे नहीं है। एवं ही डायग्राम बनेगी सब दी। सम संडे आर मंडे, कुछ संडे मेरा की है मंडे है। ऑल मंडे आर ट्यूसडे, ऑल मंडे इज ट्यूसडे। ओनली अ फ्यू ट्यूसडे आर वेडनेसडे, ठीक है। सो हुन थर्ड फोर्थ पॉइंट है जो, इसनू ध्यान नाल देखो, इसनू आपां किवें करांगे। ओनली अ फ्यू ट्यूसडे आर वेडनेसडे, कुछ ट्यूसडे ही हैं जो मेरा होगी हैं वेडनेसडे, यानी कि कुछ ऐसे भी होंगे जेड़ा नहीं होंगे, ठीक है। कुछ ट्यूसडे मेरे ऐसे भी होंगे जेड़े वेडनेसडे नहीं होंगे, ठीक है। तो तुसीं डायग्राम समझ गए सारे कि बनी किवें है। सो हुण कंक्लूजन एज इट इज सेम होंगे। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਟਰਾਈ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਨਕਲੂਜਨ 1 2 3 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਗਲਤ। 30 ਸੈਕਿੰਡਸ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਜਲਦੀ ਕਰੋ। ਸੋ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਪਹਿਲਾ ਕਨਕਲੂਜਨ ਕੀ ਹੈ, ਸਮ ਵੈਡਨਸਡੇ ਆਰ ਮੰਡੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੰਡੇ ਆ ਸੀਗਾ, ਵੈਡਨਸਡੇ ਇਹ ਸੀਗਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤੇ ਸੌਰੀ ਕਨਕਲੂਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਗਲਤ ਕਰਾਂਗੇ ਪਹਿਲਾ ਕਨਕਲੂਜਨ। ਸੈਕਿੰਡ ਕੀ ਹੈ, ਸਮ ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਆਰ ਨਾਟ ਵੈਡਨਸਡੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਉਸਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਓਨਲੀ ਅ ਫਿਊ ट्यूसडे आर वेडनेसडे, ठीक है। यानी कि सिर्फ कुछ ही ट्यूसडे है जो मेरे को वेडनेसडे है, ठीक है। या एवें भी आप इसको पढ़ सकते हैं ना कि कुछ ट्यूसडे ऐसे हैं जो वेडनेसडे नहीं है, ठीक है। तो हम मैंने इतने की चीज़ दी है, सम ट्यूसडे आर नॉट वेडनेसडे। हाँ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ वाले ट्यूसडे सी वो मेरे की हैं वेडनेसडे नहीं है, तो वो सही कह रहे हैं, ठीक है। समझ आ गया इन्ना पॉइंट। सो हुण थर्ड पॉइंट आप देखते हैं, ऑल ट्यूसडे बीइंग वेडनेसडे इज अ पॉसिबिलिटी, ठीक है।
सो हुण ये वाली चीज़ मेरी ट्यूसडे वैनसडे पक्का हो नहीं सकती, ठीक है। तो हुण अगर ये चीज़ हो नहीं सकती तो हुण चाहे पॉसिबिलिटी होवे या ना होवे, क्या वो वाली चीज़ वैनसडे के अंदर जा सकती है? नहीं जा सकती। तो ये वाला कंक्लूजन थोड़ा की होएगा, गलत होएगा, ठीक है। हुण अगर आप मान लीए ऑल ट्यूसडे बीइंग वैनसडे हुंदा, फिर भी नहीं जाना सी, इज अ पॉसिबिलिटी आ गया, फिर भी नहीं जाएगा, क्योंकि वो डेफिनेट केस है कि इन्ना क ट्यूसडे आ जो मेरा वैनसडे दे विच जा ही नहीं सकता। सो अगर इन्ना क नहीं जा सकता तो सारे का सारा ट्यूसडे वैनसडे के अंदर किमें चला जाएगा? समझ आ गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो ट्राई। चलो एक दो क्वेश्चन हाले आप पहले इकट्ठे करते हैं सॉल्व, फिर करेंगे आगे। नो ग्रेप इज गुआवा, नो ग्रेप इज गुआवा, ठीक है। सम गुआवा आर फ्रूट, सम गुआवा आर फ्रूट, ओनली अ फ्यू फ्रूट इज बनाना, कुछ फ्रूट ही मेरा की है बनाना है, यानी कि कुछ ऐसा होएगा जोड़ा नहीं होएगा, ठीक है। ऑल बनाना इज एप्पल, सारे का सारा बनाना की है एप्पल है। यही डायग्राम बनेगी, ठीक है। चेक कर लो एक बार। सो हुन कंक्लूजन 1 30 सेकंड्स हैं, जल्दी सॉल्व करके देखो ते कमेंट सेक्शन दे विच अपना अपना आंसर जरूर दसो। सो हुन यही देखो कंक्लूजन 1, सम फ्रूट आर नॉट बनाना, कुछ मेरा फ्रूट की है बनाना नहीं है। देखो ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ क्वेश्चन ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹੋਇਆ ਸੀ ਓਨਲੀ ਅ ਫਿਊ ਫਰੂਟ ਇਜ਼ बनाना, यानी कि कुछ ऐसा फ्रूट होएगा ਜਿਹੜਾ मेरा बनाना नहीं होएगा। ਤਾਂ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਮ ਫਰੂਟ ਆਰ ਨਾਟ बनाना, यानी कि इस केस ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਕਲੂਜਨ ਨੰਬਰ 1 ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? सही हो जाएगा, ठीक है। कंक्लूजन नंबर 2 की है ऑल फ्रूट बीइंग एप्पल इज अ पॉसिबिलिटी, ठीक है। ऑल फ्रूट बीइंग एप्पल इज अ पॉसिबिलिटी। तो अगर आप हुन एप्पल का सर्कल बड़ा कर दिए, ठीक है, फ्रूट ते बनाना वाली चीज आप नहीं छेड़ रहे, सो क्या मेरा सारे का सारा फ्रूट एप्पल दे विच आ सकता है? ठीक है, तो हाँ जी आ सकता है। देखो हुन अगर मैं इत्थे डायग्राम चेंज करदा, ग्रेप है, फिर ग्रेप का कोई भी रिलेशन नहीं है किस दे नाल? गुआवा दे नाल। गुआवा का कुछ हिस्सा की है फ्रूट है, ठीक है। फ्रूट का कुछ हिस्सा की है बनाना है ते कुछ नहीं है, ओनली ऑफ यू वाला केस सी। तो हम सारे का सारा एप्पल ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਦਈਏ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਲਈਏ, ਐਪਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਲੈ ਲਿਆ? ਫਰੂਟ ਤੇ ਬਨਾਨਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? देखो नो ग्रेप इज गुआवा, ठीक है जी। सम गुआवा आर फ्रूट, वो चीज़ भी ठीक है। ओनली अ फ्यू फ्रूट इज बनाना, वो चीज़ भी ठीक है। ऑल बनाना इज एप्पल, सारे का सारा बनाना भी की है एप्पल के अंदर आ गया, कोई भी स्टेटमेंट गलत नहीं हुई ना। हम जिसमें एवं कन्फ्यूजन होंगी वो एवं डायग्राम बना के देख लिया करो। सो हम सेकंड की है ऑल फ्रूट बीइंग एप्पल इज अ पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी है कि मेरा जो फ्रूट है सारे का सारा वो की है एप्पल के अंदर आ जाएगा। हाँ जी आ गया। डायग्राम भी चेंज होगी थोड़ी जी, तो अपनी स्टेटमेंट भी कोई नहीं कोई चेंज नहीं हुई, तो फिर सेकंड वाला कंक्लूजन आप की करांगे? सही करांगे। समझ आ गया सबनों? सो जिसमें एवं दिक्कत आती है कुछ तो हूँ इस तरीके नाल डायग्राम बना के देख ले ते चेक कर ले कि क्या उसकी कोई भी स्टेटमेंट चेंज हो रही है डायग्राम बनाने। अगर चेंज हो रही है तो फिर उत्थे तुसी कंक्लूजन नूं की कर दोगे? गलत कर दोगे। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओनली अ फ्यू कार्स आर साइकिल, ओनली
a few cars are cycle, ठीक है, यानी कि कुछ कार्स ऐसियां होणगियां जो साइकिल नहीं हैगी। ऑल कार्स आर स्कूटर, ओनली अ फ्यू कार्स आर साइकिल, ऑल कार्स आर स्कूटर, सारी दी सारिया कार्स मेरिया की हैं स्कूटर हैं, ठीक है, यही बनेगी डायग्राम। तो 20 सेकेंड्स द टाइमर, कंक्लूजन 1 2 दसो केड़ा सही होएगा केड़ा गलत। हाँ जी हो गया। सो हम कंक्लूजन 1 की है सम स्कूटर आर नॉट साइकिल, ठीक है। तो हम एक ही है मेरा स्कूटर, स्कूटर ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਕਾਰਸ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਾਰਸ ਮੇਰੀਆਂ ਸਾਈਕਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਾਰਸ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਸਕੂਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਕੂਟਰ ਦਾ ਵੀ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਸਾਈਕਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ मैं ਕੀ करूंगा, पहला कंक्लूजन सही कर दूंगा, ठीक है। बहुत अच्छा पॉइंट है, दोबारा देखो, सम स्कूटर आर नॉट साइकिल, कुछ स्कूटर का हिस्सा मेरा साइकिल नहीं हो सकता, ठीक है। तो हुन अगर मैं देखा कुछ कार का हिस्सा मेरा साइकिल नहीं है, ओनली अ फ्यू वाला केस है, ठीक है। तो हुन अगर मेरा कुछ कार वाला हिस्सा साइकिल नहीं है, तो हुन कार किस दे अंदर आ रही है, स्कूटर। तो अगर कार का हिस्सा साइकिल नहीं हो सकता तो स्कूटर के अंदर आ रही है कार, तो स्कूटर वाला यह वाला हिस्सा भी साइकिल नहीं हो सकता, ठीक है। तो हुन यही चीज तो कह रहे हैं, तो इत्थे आपां की करांगे, कंक्लूजन नंबर 1 सही करांगे। सम स्कूटर आर कार्स, ठीक है। तो हुन ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ, ਸਮ ਸਕੂਟਰਸ ਆਰ ਕਾਰਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਸਕੂਟਰ ਕੀ ਹੈ, ਕਾਰਸ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, ਦੋਨੋਂ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਸਹੀ ਕਰ ਦੋਗੇ ਕੰਕਲੂਜਨ, ठीक है। सम स्कूटर आर कार्स, ये चीज सही होगी सब दी, ठीक है। पहले वाला जो पॉइंट है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट सीगा इस क्वेश्चन दे विच, ठीक है, दूसरे वाला तो बहुत आसान सीगा। चलो हुन अगला क्वेश्चन है, यह तुसी करके दिखाओ जल्दी कमेंट सेक्शन दे विच दसो, 1 मिनट का टाइम है थोड़े लिए। बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है ये, ओनली ऑफ यू ओनली ऑफ यू ओनली ऑफ यू आ रहे हैं तीनों स्टेटमेंट्स दे विच, ठीक है। कंक्लूजन भी अच्छी तरह चेक करो तुसी। चलो करिए। ओनली ऑफ यू पेन आर स्केल, कुछ पेन मेरा की है स्केल है, तो कुछ पेन नहीं होएगा, ओनली ऑफ यू वाला केस है। ओनली ऑफ यू स्केल आर बॉक्स, यानी कि कुछ स्केल ऐसा होएगा जो बॉक्स नहीं है। ओनली ऑफ यू बॉक्स आर रबड़, तो कुछ बॉक्स ऐसा होएगा जो रबड़ नहीं है। सबकी डायग्राम यही बनी होगी, ठीक है। सो हुण आपां गल करदे हां कंक्लूजन दी। कंक्लूजन 1 2 3 4 4 कंक्लूजन। सो हुण कंक्लूजन देखो, ऑल स्केल बीइंग बॉक्स इज अ पॉसिबिलिटी, क्या मेरा सारे दा सारा स्केल बॉक्स दे अंदर जा सकता है, नहीं। क्यों, क्योंकि उसने ऑलरेडी किया है कि मेरा कुछ स्केल दा हिस्सा ऐसा है जो बॉक्स नहीं हो सकता, ठीक है। तो फिर इत्थों देख के अपन नूं की पता चल रहा है, पहला कंक्लूजन की है गलत होएगा, ठीक है। ऑल स्केल बीइंग बॉक्स, ठीक है। या तो हुण अगर आप देख लिए क्वेश्चन थोड़ा चेंज कर दिए, सिर्फ इन्ना हिस्सा रख ली इज अ पॉसिबिलिटी, हले आप ना देखिए।
ਫਿਰ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਕਨਕਲੂਜਨ ਹੈ ਉਹ ਗਲਤ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਇਜ਼ ਦਾ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਨਕਲੂਜਨ ਗਲਤ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਡੈਫੀਨੇਟ ਕੇਸ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। सेकंड कंक्लूजन की है, सम बॉक्स आर नॉट रबड़। कुछ बॉक्स मेरे की हैं रबड़ नहीं है, तो यह चीज की है सही है, तो सही नु आप फिर सही ही करांगे। सम स्केल आर पेन, कुछ पेन की है मेरे स्केल है, तो वो इस पोर्शन की गल कर रहे हैं, इस केस दे विच भी की है थर्ड वाला पॉइंट सही हो जाएगा। फोर्थ की है, सम स्केल आर नॉट रबड़। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੁਝ ਸਕੇਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕਿਆ ਮੇਰਾ ਰਬੜ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਚ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਨਹੀਂ। ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਸਕੇਲ ਤੇ ਰਬੜ ਦੀ, ਅਨਡਿਫਾਈਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਨਡਿਫਾਈਨ ਹੋਵੇ ਇੱਥੇ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦਾ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚੇਂਜ ਕਰਦਾ, ਨਾਲ ਲਿਖਦਾ ਇਜ਼ ਅ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋਗੇ, ਇਹ ਕਨਕਲੂਜਨ ਇਸ ਦਾ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਲਗਾ ਕੇ ਸਹੀ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗਲਤ ਹੋਏਗਾ। क्लियर? चलो स्क्रीनशॉट खींच लो अगर किसी ने खींचना है इस क्वेश्चन का। चलो अगला क्वेश्चन, ओनली अ फ्यू ए आर बी, कुछ ही मेरा ए की है बी है, यानी कि कुछ ऐसे ए होंगे जेडे कदे भी बी नहीं हो सकते। सम बी आर सी, सम बी आर सी, ऑल ए आर डी, ਐਵੇਂ ਹੀ ਬਣੇਗੀ ਡਾਇਗਰਾਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਡਾਇਗਰਾਮ ਤਾਂ ਫਟਾਫਟ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਨਕਲੂਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਿੱਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੋਣੀ ਸਭ ਨੂੰ। ਕਨਕਲੂਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ अच्छी तरह समझ के करो, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, बहुत ही ज़्यादा आसान चैप्टर है। सिर्फ 3 तो 4 ही कॉन्सैप्ट्स है जिन्हों के ऊपर आप फोकस करना है मेनली। ठीक है, सो 5 कनकलूजन है। सम बी आर डी, ठीक है, कुछ मेरा बी का हिस्सा की है डी है, तो देख सकते हो यही वाली पोर्शन की गल कर रहे हैं वो, तो सही हो गया। ठीक है, सम डी आर बी, ये भी की हो गया, सही हो गया। ठीक है, बट एक चीज का ध्यान रखियो, रेपीटिशन का ध्यान रखियो स्टेटमेंट ते कंक्लूजन का। ठीक है, इतने का फिलहाल कोई रेपीटिशन नहीं है। सो हुण अगला पॉइंट थर्ड की है, ऑल ए बीइंग बी इज अ पॉसिबिलिटी। सारे का सारा ए क्या बी दे अंदर जा सकता है, नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि उसने ऑलरेडी क्या है, ए वाला ए का हिस्सा बी दे विच नहीं जा सकता, तो फिर सारे का सारा नहीं जा सकता। इज अ पॉसिबिलिटी लिखिया होवे नहीं लिखिया होवे कोई मैटर नहीं करेगा। ऑल डी बीइंग बी इज अ पॉसिबिलिटी, क्या हुण सारे का सारा डी बी दे अंदर जा सकता है? तो हुण काफ़ी इत्थे की करेंगे, हाँ टिक लगा देंगे, बट डी दे अंदर की आ गया ए, तो ए का हिस्सा बी दे अंदर नहीं जा सकता थोड़ा जा। तो हुण अगर ए का हिस्सा नहीं जा रहा, तो डी का भी कुछ हिस्सा ए ही का ही लगेगा, ए का भी कुछ हिस्सा डी के अंदर ही आ रहा है। तो हुण अगर ए का हिस्सा नहीं जा सकता, तो डी भी नहीं जा सकता, इत्थे भी की हो गया, गलत हो गया। ऑल बी बीइंग ए इज अ पॉसिबिलिटी। ठीक है, हुण आपां नूं क्वेश्चन दे विच क्या है कि मेरा कुछ हिस्सा ए दा की है बी नहीं है। ठीक है, मतलब इत्थे एवें डायग्राम एवें होएगी। ठीक है, ए बी दे अंदर नहीं जा सकता। ठीक है, बट बी है जो वो तो ए दे अंदर आ सकता है ना, तो हुण इत्थे वर्ड भी की है पॉसिबिलिटी, तो इत्थे कंक्लूजन नूं तुसीं की करोगे, सही करोगे। ठीक है, सो सॉरी बेसिकली जो फिफ्थ वाला पॉइंट है यह थोड़े लिए की है न्यू पॉइंट है। ठीक है, की न्यू पॉइंट है कि मेरा जो बी है ओनली अ फ्यू केस दे विच ए दे अंदर चला जाएगा। ठीक है, सो स्क्रीनशॉट खिंच लो, इस क्वेश्चन का भी बहुत अच्छा क्वेश्चन सी। बेसिकली कंक्लूजन फिफ्थ नवा पॉइंट है थोड़े लिए।
ਚਲੋ ਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ। ਲੋ ਜੀ, ਕਰੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਟਰਾਈ, 1 ਮਿੰਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਕਰੋ ਜੀ, ਕਰੋ ਟਰਾਈ ਜਲਦੀ। ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਸਭ ਨੇ ਕਿ 25th ਦਾ ਮੇਰਾ ਇਹ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਹੋ ਗਿਆ ਸਭ ਦਾ। ਚਲੋ, ਸੋ ਦੇਖੋ क्वेश्चन, ओनली अ फ्यू रिवर इज ओशन। ओनली अ फ्यू रिवर इज ओशन, यानी कि कुछ रिवर का ऐसा हिस्सा है जो ओशन नहीं होएगा। सम ओशन इज पॉन्ड, नो पॉन्ड इज सी, ऑल सी इज लेक। डायग्राम आई होप सब दी यही बनी होएगी। ठीक है, चलो। सो हुण कंक्लूजन देखते हैं आप किन्ने कंक्लूजन है इत्थे। 1 2 3, 1 2 3। ऑल रिवर बीइंग ओशन इज अ पॉसिबिलिटी। काफी बार देख लिया हुण कि पॉसिबिलिटी होवे ना होवे, सारे दा सारा रिवर ओशन दे विच नहीं जा सकदा। क्यों? क्योंकि ये वाला पोर्शन है जो ओशन दे अंदर नहीं जा सकदा। तो एक केस की हो गया, गलत हो गया। तो हुण तुसीं ऑप्शंस दे विच देख सकते हो ना, यह ऑप्शन हो सकता है ना ही यह हो सकता है। हुण तीनों दे विचों बचिया। ठीक है, सेकंड कंक्लूजन की है, सम लेक बीइंग ओशन इज अ पॉसिबिलिटी। सम लेक बीइंग ओशन इज अ पॉसिबिलिटी। तो हो सकता है कुछ मेरा लेक का हिस्सा ओशन होवे। ठीक है, तो ए वाला केस थोड़ा की हो गया, सही हो गया। ठीक है, थर्ड कंक्लूजन देखो, सम पॉन्ड इज लेक। कुछ पॉन्ड मेरा की है लेक। ठीक है, रिलेशन की है अनडिफाइन। जिथे रिलेशन अनडिफाइन होवे उत्थे आपां उसनूं की करांगे, गलत करांगे। ठीक है, तो हुण तीनों कंक्लूजन्स दे विच सिर्फ सेकंड वाला कंक्लूजन सही हो रहा है। दैट मीनस ऑप्शन नंबर सी तुसी सही करोगे। तो ऑप्शन नंबर सी है केड़ा, ओनली कंक्लूजन 2 फॉलोज। क्लियर हो गया सबनों? ठीक है, सो एवें करना सीगा आपां ये वाला क्वेश्चन। आई होप सबनों क्लीयर हो गया। चलो हुण नैक्सट क्वेश्चन करते हैं आपां। करो, 30 सेकंड्स का टाइमर थोड़े लिए।
चलो, हो गया सबका क्वेश्चन। ओनली अ फ्यू रेड इज येलो, ओनली अ फ्यू रेड इज येलो, यानी कि कुछ रेड का हिस्सा येलो नहीं है। नो येलो इज ब्लू, कोई भी येलो मेरा ब्लू नहीं है। ओनली अ फ्यू ब्लू इज ग्रीन, यानी कि कुछ ऐसा हिस्सा ब्लू का ग्रीन नहीं है। सम ग्रीन इज पिंक। ठीक है, सो हुण आपां कंक्लूजन चेक करते हैं। जिस दी डायग्राम यही बनी है, कंक्लूजन दसो किहड़ा होएगा। ऑल रेड बीइंग ब्लू इज अ पॉसिबिलिटी, ऑल रेड बीइंग ब्लू इज अ पॉसिबिलिटी। क्या सारे का सारा रेड बी हो सकता है? नहीं, क्योंकि वाई ते बी दे विच कोई भी रिलेशन नहीं है। ठीक है, यानी कि पक्का जो वाई का कुछ भी हिस्सा थोड़ा बी के अंदर नहीं जाना चाहिए, तो यानी कि ए वाला हिस्सा भी की है थोड़ा बी के अंदर नहीं जाना चाहिए, बट ए वाला हिस्सा है किसका? आर का। तो सारे का सारा आर बी नहीं हो सकता। ठीक है, तो पहला वाला कंक्लूजन गलत हो गया। सम पिंक बीइंग ब्लू इज अ पॉसिबिलिटी, सम पिंक बीइंग ब्लू इज अ पॉसिबिलिटी। हाँ, हो सकता है कि मेरा कुछ पी का हिस्सा बी होवे, तो इत्थे तुसी की करोगे? सही करोगे। क्लियर। थर्ड देखो, सम येलो इज पिंक, कुछ येलो मेरा की है पिंक है, बट इत्थे आपां नूं रिलेशन पता ही नहीं। उस केस दे विच आपां इस कंक्लूजन नूं की करांगे? सही नहीं करांगे, गलत करांगे। ठीक है, तो हुण सिर्फ एक कंक्लूजन सही हो रहा है, केड़ा? सेकंड। तो हुण ऑप्शन तुसी केड़ा चूज करोगे? ओनली सेकंड फॉलोज, ते ओनली सेकंड फॉलोज थोड़ा केड़ा ऑप्शन है? ए ऑप्शन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर थोड़ा की हो जाएगा? ए ऑप्शन। क्लियर हो गया सबनों? सो अज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, ट्राई करो जल्दी। चलो, ओनली अ फ्यू बॉय इज ग्रीन, ओनली अ फ्यू बॉय इज गर्ल, यानी कि कुछ बॉयज का हिस्सा गर्ल नहीं है। सम गर्ल इज मैन, ओनली अ फ्यू मैन इज वुमेन, कुछ मैन का हिस्सा वुमेन नहीं है। नो वुमेन इज किड। यही है क्वेश्चन, डायग्राम यही बनेगी। सो हुण कंक्लूजन इस क्वेश्चन दे भी अपने को 3 है। ठीक है, देखते हैं किहड़ा फॉलो होंदा, फिर उस अकॉर्डिंग आप ऑप्शन नु टिक लगा देंगे। पहला कंक्लूजन की है? सम गर्ल इज नॉट बॉय इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ गर्ल का हिस्सा की है बॉय हो सकता है ना होवे। ठीक है, इज अ पॉसिबिलिटी आ गया। ठीक है, तो उस केस दे विच तुसी की करोगे? इसको सही करोगे कि हाँ हो सकता है कुछ गर्ल का हिस्सा बॉय ना होवे। सेकंड की है? सम वुमेन इज नॉट मैन, कुछ विमेन मेरी की है मैन नहीं है। डेफिनेट केस नहीं है ये। ठीक है, बट इन्होंने की है डेफिनेट बना के दिता होया, उसनों आपां की करांगे? गलत करांगे। बट हाँ, अगर इत्थे उपर वांगू आ जांदा इज अ पॉसिबिलिटी, उस केस दे विच तुसी इसनों की करदे? सही करदे। ठीक है, डिफरेंस पता चल गया, पहले वाला क्यों सही किया, दूसरे वाला क्यों गलत। सो थर्ड कंक्लूजन देखो, सम किड बीइंग गर्ल इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ किड गर्ल हो सकता है। क्या ये चीज पॉसिबल है? हाँ जी, यह चीज पॉसिबल है। ठीक है, तो हम तुसी ऑप्शंस देखो, केड़ा केड़ा ऑप्शन थोड़ा सही होया? पहला सही,
ਤੇ ਥਰਡ ਵਾਲਾ ਸਹੀ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਆਪਸ਼ਨ ਟਿਕ ਲਗਾਓਗੇ? ਬੋਥ ਕਨਕਲੂਜਨ 1 ਐਂਡ 3 ਫੋਲੋਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਆਪਸ਼ਨ ਟਿਕ ਲਗਾਓਗੇ? ਬੋਥ 1 ਐਂਡ 3 ऑफ ਕਨਕਲੂਜਨ ਫੋਲੋ, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ਸੋ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸਭ ਨੂੰ? ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਖਿੱਚਣਾ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਖਿੱਚ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹੀ ਸੀ ਆਪਣੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਇਲੌਗਸ ਦੀ ਹੋਰ ਬਣੇਗੀ। ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ। ਕੁਛ ਵੀ ਡਾਊਟ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਡਾਊਟ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਦਾਂਗੇ ਕੁਛ ਵੀ ਡਾਊਟ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਐਕਸਟਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਲਵ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਫੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਮੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਲੀਅਰ? ਸੋ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕਲਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਥੈਂਕਸ ਫॉर वाचिंग।